A very good morning to all of you, Bache. So again, we will revision this question of exercise 3.3, your chapter number 3. If anyone is having any doubt from the previous lecture, you can ask. If any doubt is there from the previous lecture, then you can ask. No doubts, I hope. So continuing with this exercise 3.4. Part 4 we will start with. Question number 1, part 4. We are having the first equation as x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1. 2y upon 3 is equal to -1. And the second equation we have given is x minus y upon 3 is equal to 3. Elimination method we are to use for simplifying this. So first of all, what we will do, first we will write it down in the simplest form by taking the LCM. 2 and 3 we are having over here, so its LCM will be 6. Both are co-primes, तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स को लिखेंगे. It will be 3x plus 4y minus 1. ये 6 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this equation becomes 3x plus 4y is equal to -6. Let this be your equation number 1. Now we are to solve the second equation. X minus y by 3 is equal to, again taking the LCM on this side, the LCM will be 3. This will be 3x minus y equal to 3. We will go to the other side. There it will get multiplied. So this is 3x minus y is equal to 9. So both equations we have got. Now we are to use the elimination method to check whether their coefficients are same or not. If they are not same, then we have to make same before cancellations. But say one child is unmute, just mute yourself. So here coefficient of x is 3. यहाँ पे भी आपका coefficient of x 3 है, तो both are same with the same signs. इनके sign यहाँ पे this is +3, here also this is +3. कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को subtract करना पड़ेगा. Either subtract 1 from 2 or 2 from 1. In any way you can write down. So subtracting equation 2 from 1. From 1 है तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे. From वाली हमारी इक्वेशन ऊपर आ जाती है. This is equal to -6. Second equation is 3x minus y is equal to 9. अब इसको हम क्योंकि subtract कर रहे हैं तो all the signs will get changed. Signs जो हैं इसके change होके this will be minus. This will be plus and this will again be minus. तो ये signs आपके जो हैं इनके change हो जाएंगे. So we will be having this 3x and minus 3x, this will get cancelled. 4y plus y is 5y. And this is equal to -6 minus 9, that is -15. So y is equal to -15 upon 5. So y is equal to -3. यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल गई -3. Up to this point, just see this once again. We equation x by 2 plus 2 by 3y equal to -1. फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमें जो है कोफिशिएंट्स गिवन है, रैशनल नंबर्स हैं, तो हमने उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया. किस तरीके से? आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स थे तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आ गया. एंड हियर व्हाट वी हैव यूज्ड, वी हैव मल्टीप्लाइड. तो 3x plus 4y अपॉन में 6 is equal to -1. ये 6 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. This will become 3x plus 4y equal to -6. In the second equation again we have taken the LCM. 1 और 3 का LCM आपके पास 3 आ गया. So again क्रॉस में मल्टीप्लाई हुए तो न्यूमरेटर becomes 3x minus y upon equal to 3.
अगेन ये 3 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका +3 है, हियर आल्सो आई एम हैविंग द सेम कोफिशिएंट विद सेम साइन। तो मैंने क्या किया, इट मींस कि जब मेरा ये कोफिशिएंट सेम साइन के साथ है तो ये मैं करती हूँ क्योंकि वैल्यू ही सेम है, तो दोनों के साइन जब सेम होते हैं हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट चेंज हो गए, ये आपका एलिमिनेट हो गया वेरिएबल x, वी आर लेफ्ट विद वेरिएबल y। दोनों पॉजिटिव थे तो 4 + 1 5y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव थे तो अगेन ऐड कर दिया, -6 -15, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3। नाउ पुट दिस y इक्वल टू -3 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। So I'm putting it in equation 1. You can put this in 2 also. So here I'm having 3x plus 4, y minus 3 है मेरे पास, this is equal to -6। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया 3x as it is plus 4 as it is, y I have replaced with this -3 equal to -6 as it is। सिंप्लीफाई कर लोगे, -12 equal to -6, -12 आपका उधर जाके प्लस हो जाएगा, so this is 3x is equal to 6, यानी कि x is equal to 2। तो आपकी x की जो वैल्यू, y की जो आपकी वैल्यू है that is -3। So this was your question। सेकंड, इसी में उन्होंने कहा you are to use the substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल जो है निकाल लेते थे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेते हैं एंड देन वी सिंप्लीफाई। मैं इस x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 से x की वैल्यू निकाल लूंगी और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको आप चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एज इट इज। सो पुट x। हाँ जी बच्चे, हमें दोनों मतलब शो करने हैं कि कोई दोनों में से कोई एक करना है? इस वाले में आपको दोनों करने को उन्होंने कहा है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द सेकंड मेथड आल्सो। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यू आर टू, आपको बुक में गिवन है solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method, and लग गया ना, तो दोनों मेथड्स आपको शो करने। ओके, तो आंसर आप चेक कर लेना, दोनों सेम आएंगे। ये पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड कर दिया एंड नाउ आई एम डूइंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 से x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, x by 2। You are out, only you will unmute yourself। I can't waste my time for this only कि आप mute करो, so I'm not giving you the option to unmute, and if anyone will be having any doubt, so you are to raise your hands। So x by 2 plus y by 3 is equal to -1 में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हाफ जो है 1 by 2 ये मैंने बाहर ले लिया, x को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 plus y by 3 से, प्लस 2y by 3 as it is, -1। अब ये मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगी, दिस इज हाफ ऑफ y by 3 या y by 6 लिख लेती हूँ मैं इसको। सो दिस इज y is equal to -1, y upon 6 plus 2y upon 3 is equal to -1 minus 3 by 2। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, सो दिस विल बी 2y plus 2y upon 6 is equal to, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लोगे, -2 minus 2। So this is 4y upon 6 is equal to -5 by 2। अब ये सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैंने एक कैलकुलेटिंग मिस्टेक की है, क्विकली फाइंड दैट आउट। जल्दी से बताओ क्या मिस्टेक की है। मैम y आएगा ना ऊपर 6, ये वाला जो ऊपर। हाँ जी बच्चे, मैम 2y की जगह y आएगा। यस मैम, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ y आएगा, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू पीपल टू फाइंड आउट द मिस्टेक। यहाँ पे y आएगा, दिस इज y प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बताओ जल्दी से क्या आएगा। 2y 4y सॉरी 4y मैम। Yes, here it will be 4y। So y plus 4y हो जाएगा आपका 5y।
तो यू आर टू सिट वेरी अटेंटिवली कि जहां मैम ने कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक की, देयर एंड देन ओनली यू आर टू फाइंड इट आउट। वाई आ गया, सेम यहाँ पे आ रहा है। अब ये y इक्वल टू -3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो है यहाँ पे -3 से +3 हो जाएगा, 3/3 +1 हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो x वाली जो सॉल्यूशन है दैट यू विल डू योरसेल्फ। y वाला मैंने आपको करके दिखा दिया है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 ओवर हियर। यहाँ पे आप इसको -3 पुट करोगे तो 3 - 1 विल गिव यू x इज इक्वल टू 2। तो कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। Now I'm moving on to question number 2. Question number 2 में again, अब I hope this method is clear to you now. Elimination is clear. एक दो Yes, पार्ट्स ma'am. और elimination के आपको करके दिखा दूंगी। अब question number 2 में we are to form the equations also. पहले हमें equations बनानी पड़ेंगी, then we are to find the solution if they exist by the elimination method. यानी कि आपको जो equations बनेंगी उनको simplify करना है using the elimination method. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला आ गया पार्ट, तो इट मींस कि हमने जो फर्स्ट आपको मैंने बताया था वो पार्ट करना ही करना है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। तो ये हमने करना ही करना है जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कंडीशन 1 मेरी क्या बनी। कंडीशन 1 इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरा x है, मैंने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा y है, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मैंने x माना है, डिनोमिनेटर मैंने y माना है, तो if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1. तो इसको मैं उधर ले जाऊंगी, so this will become x plus 1 is equal to y minus 1. यहाँ से x minus y is equal to -2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सेकेंड कंडीशन मुझे क्या गिवन है। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है कि इफ वी ओनली add 1 to the denominator, it becomes half. Fraction becomes half if we only add 1 to the denominator. यानी कि there is no change in the numerator, उसको हमने नहीं छेड़ा। Denominator में we have added 1 and the fraction reduces to half. तो यहाँ से अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। So this is 2x is equal to y plus 1. इक्वेशन की फॉर्म में it will be 2x minus y is equal to 1. अब इनके एलिमिनेशन मेथड है तो कोफिशिएंट्स चेक करेंगे। Here the coefficient of x is 1, coefficient of x is 2, coefficient of x is -1, coefficient of y is -1, coefficient of y is -1. यहाँ पे दोनों जगह आपका coefficient सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करें। So subtracting 1 में से 2 या 2 में से 1 वो आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 मेरी है x minus y equal to -2. This is 2x minus y equal to +1. So the signs will be changed क्योंकि मैं subtract कर रही हूँ इसको। So now see this -y plus y, तो ये मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y मेरा एलिमिनेट हो गया। आई एम लेफ्ट विथ -x is equal to -3. तो -x is equal to -3 means x is equal to 3. तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू चाहे मैं यहाँ पुट करूँ, यहाँ पुट करूँ, दोनों में से किसी एक में पुट कर लूँ। So put x is equal to 3 in equation. I'm putting it in 1. So here 2 into 3 minus y is equal to 1. 6 minus y is equal to 1. Minus y is equal to 1 minus 6. Minus y equal to -5. Negative signs दोनों साइड पे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। So you are left with y is equal to 5. मुझे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the फ्रैक्शन मैंने क्या माना, x अपॉन y। फ्रैक्शन इज x अपॉन y। 3/5. Yes, 3/5. Value of x is 3, value of y is 5, so the fraction will be 3/5. दोबारा देखो, ये चीज जो है, जब भी फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन है, ये पार्ट हमने करना ही करना है। न्यूमरेटर x मान लो, डिनोमिनेटर y मान लो, तो फ्रैक्शन x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
कंडीशन 1 में वो कह रहा था इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो हमने +1 कर दिया न्यूमरेटर में, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो -1 कर दिया। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन यहाँ हमने y-1 को इधर ले गए, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें चाहिए, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। सेकेंड कंडीशन में इट बिकम्स हाफ, इट किसके लिए आया, फ्रैक्शन के लिए, तो फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। हाफ कब होती है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका x ही रहेगा। वी हैव एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो y+1 हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो यहां से आ गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x इज इक्वल टू y+1, ये प्लस y आप इधर ले जाओगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड के लिए either the coefficients of x should be same or the y should be same, तो x के coefficients मेरे यहाँ सेम नहीं थे, but the coefficients of y are same, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ, साइंस क्योंकि सेम थे दोनों coefficients के, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। जब साइंस डिफरेंट होते हैं ऐड करते हैं, जब साइंस सेम होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, तो साइंस चेंज करके y एलिमिनेट हो गया आपका, -y + y कैंसिल आउट हो गया, x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज -x, -2 में -1 ऐड किया तो दैट इज -3। सिंप्लीफिकेशन के बाद वी गॉट द वैल्यू ऑफ x as 3। अब ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, यू कैन पुट इट इन 2 आल्सो, द सेम रिजल्ट यू विल गेट फॉर y। यहाँ पे पुट करके मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब x और y मैं दोनों कैलकुलेट कर चुकी हूँ, मुझे फ्रैक्शन बताना था, तो फ्रैक्शन मेरा x/y से मैंने डिनोट किया है, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करके फ्रैक्शन इज 3/5। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब जो नेक्स्ट के पार्ट्स हैं उनमें मैं सिर्फ आपकी इक्वेशंस बनाऊंगी, ये जो एलिमिनेशन पार्ट से फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y है दैट यू विल डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एज वाला क्वेश्चन है, तो नेचुरली जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं हम प्रेजेंट एजेस जो है एज्यूम करके चलते हैं इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कोई रेयर क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे हमें कुछ और एज्यूम करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे गिवन है नूरी 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो गिवन हम साथ के साथ फटाफट लिख सकते हैं, नूरी जो है she was thrice as old as सोनू, या आप रफ में पार्ट कर सकते हो। ये कब का गिवन है हमें, 5 years ago। फिर वो कह रहा है 10 years later, 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो एज ऑफ नूरी जो है दैट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर से मुझे पता लगा कि मुझे उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। एज है तो यूनिट ईयर्स आएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। दोनों की मैंने एजेस x और y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो 5 years ago, 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज इज x-5 हो जाएगी, और सोनू की एज हो जाएगी y-5। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 नूरी विल बी 3 times as old as सोनू। नूरी की एज क्या है, x-5, तो नूरी एज इज 3 times एज ऑफ सोनू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से मुझे फर्स्ट इक्वेशन x और y वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट्स दूसरी तरफ, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी x-3y इज इक्वल टू -10। अब कंडीशन टू में वो क्या कह रहा है, 10 years later, तो 10 years later मतलब बाद में, तो नूरी एज लेटर या हेंस में हम एज को प्लस कर देते हैं, अगर प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 10 years एज विल बी x + 10 years। 10 years later सोनूज एज विल बी y + 10। अब कंडीशन हम 2 लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 10x + 10 ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज y + 10। अगेन यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन।
x वाली टर्म्स y वाली टर्म्स एक तरफ, दूसरी तरफ 20 माइनस 10, मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गई x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, दोनों के कोफिशिएंट्स +1 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना, चाहे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, दैट इज अप टू यू। कैसे करोगे? सिंप्लीफाई करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड x की वैल्यू आएगी 50। सॉल्यूशन पार्ट यू विल शो, यहाँ आप खुद सॉल्व करोगे आगे, और y इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 50। तो आपकी जो x है वो आपने नूरी की एज मानी थी, तो एज ऑफ नूरी इज 50 years एंड एज ऑफ सोनू इज 20 years। So this is your question number 2, part 2. This part you will complete yourself. Elimination method, coefficients check करोगे, coefficient of x यहाँ दोनों सेम है। इन केस अगर वो सेम नहीं होते तो आपने क्या करना होता है, एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम जैसे x के कोफिशिएंट्स मुझे सेम बनाने हैं, तो इधर जो कोफिशिएंट होगा वो इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर वाले कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3, आपका जो क्वेश्चन है वो डिजिट्स वाला है, नंबर वाला है। तो अगेन जब नंबर वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें 1s प्लेस डिजिट एंड 10s प्लेस डिजिट एज्यूम करके चलना होता है। हमें गिवन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो हमें 9 गिवन है। तो अगेन मैं जो रफ में मुझे गिवन है वो लिख दूंगी, सम ऑफ डिजिट्स 9। फिर वो क्या कह रहा है कि इफ ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, कि 9 टाइम्स द नंबर, मैं नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए ओरिजिनल नंबर लिख लेती हूँ। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि रिवर्स्ड नंबर। ऑर्डर ऑफ डिजिट्स जब मैंने जो है चेंज कर दिया तो वो मेरा रिवर्स नंबर हो गया। मान लो मुझे अगर नंबर सपोज 36 गिवन है तो ऑर्डर चेंज करके नंबर क्या बनेगा, 63। 1s प्लेस वाले को मैं 10s प्लेस पे लिख दूंगी, 10s प्लेस वाले को मैं 1s प्लेस पे लिख दूंगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 8th में भी किए हुए हैं, 9th में भी किए हुए हैं। तो यू नो इट वेरी वेल कि जब हमें 2 डिजिट्स वाला आ जाता है तो ये पार्ट हमने करना ही करना है। जब नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो ये पार्ट आपने करना ही करना है। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, वंस ONCE वाला नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान रखना। लेट डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। डिजिट है तो आगे कोई यूनिट नहीं आएगा। अब अगेन यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि क्योंकि यहाँ पे मैं डिजिट्स एज्यूम कर रही हूँ तो जो मेरा नंबर बनेगा दैट विल बी रिटन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा that will be 1s प्लेस वाला as it is 1 से मल्टीप्लाई करके, 10s प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा that will be 10y plus x। 2 डिजिट नंबर में बना रही थी तो मैंने 2 प्लेसेस के डिजिट्स एज्यूम कर लिए, 1s प्लेस वाला x ले लिया, 10s प्लेस वाला y ले लिया। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बना, जो भी 10s प्लेस पे आपने एज्यूम किया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 1s प्लेस वाला जो एज्यूम किया है वो 1 से मल्टीप्लाई करके, या वी कैन से कि एज इट इज लिख दो। तो ओरिजिनल नंबर हो गया मेरा 10y plus x। अब रिवर्स नंबर भी आपको साथ में, मोस्टली जो भी डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ओरिजिनल नंबर के साथ रिवर्स नंबर भी हमने लेना ही होता है। तो इतना पार्ट हमारा बनेगा ही बनेगा हर क्वेश्चन, जो भी नंबर वाला 2 डिजिट नंबर वाला आएगा। अब रिवर्स नंबर में x की जगह y की जगह x, तो दिस विल बी 10x plus y। तो ये हमारा जो है वो नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, कंडीशंस लगा देनी है। मुझे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स। जब मैं डिजिट्स की बात कर रही हूँ तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट x एंड y। तो सम ऑफ डिजिट्स 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1। सम ऑफ डिजिट्स यानी कि डिजिट्स कौन कौन से हैं, x एंड y। सम की बात हो रही है तो बीच में प्लस का साइन लग गया। कितना सम गिवन है मुझे, 9। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट सेकंड के लिए, कंडीशन के लिए वो क्या कह रहा है,
9 times the original number. तो condition 2 है ये मेरी, 9 times the original number. Original number क्या है? 10y plus x. This is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो यानी कि reverse number, that is 10x plus y. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी तो यहाँ से मेरे पास x और y की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं है यहाँ पे. So this is 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली टर्म्स एक तरफ, दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे. तो ये है हमारे पास 90y plus 9x, इन दोनों को हम इधर ले आए, इक्वल टू 0. पहले x वाला लिखना है मैंने, तो 9x minus 20x is minus 11x. 90y minus 2y, this is 88y. अब जब मेरे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाती है ना, जिसमें कुछ कॉमन बन रहा होता है, तो हम उस कॉमन को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी बन जाए. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से -11 को बाहर ले, क्योंकि 88 भी 11 से डिविजिबल है. -11 बाहर लिया मैंने तो यहाँ पे x रह गया, प्लस में से माइनस बाहर लिया तो यहाँ माइनस, 88 में से 11 बाहर गया तो दिस इज 8y इक्वल टू 0. ये 11 उधर जाके डिवाइड करेगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0. तो मेरी इक्वेशन 2 क्या बन गई, x minus 8y इज इक्वल टू 0. x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो सेम साइन है, +1 तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, 1 from 2, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लेना. अगेन इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपके पास x 8 आएगा, y आपके पास 1 है. अब सम ऑफ डिजिट्स वेरीफाई कर लेना. सम ऑफ डिजिट्स 9, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बनेगा, 10 into 1, 10y plus x में पुट करोगे, 10 into 1 plus 8, 18, एंड रिवर्स नंबर क्या बनेगा, 10 into 8 plus 1, 81. तो 9 times the original number is equal to twice of the 9 times 2 जो है that is equal to twice of the original number. तो आपका वो नंबर बन जाएगा. नंबर हमारा 18 आ रहा है, तो जब आप उसका उल्टा करोगे 18 का, तो 18 का 9 times is equal to twice of 81. तो आपका वो आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा. फिर से देख लो इसको, हमें क्वेश्चन गिवन था, 2 डिजिट नंबर गिवन था, तो जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये पार्ट आपने करना ही करना है. जैसे फ्रैक्शन वाले में मैंने बताया था कि वो वाला पार्ट आपने करना ही करना है, सेम 2 डिजिट वाले में ये पार्ट करना ही करना है. डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस x, डिजिट एट टेंस प्लेस y, ओरिजिनल नंबर 10y plus x, रिवर्स नंबर 10x plus y, ये लेना ही लेना. उसके बाद कंडीशंस जो हमें गिवन है, अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड. यहाँ पे मुझे गिवन है कंडीशन 1, x plus y, सम ऑफ डिजिट्स जो था वो 9 गिवन था, तो x plus y इक्वल टू 9 आ गया. कंडीशन 2 में वो क्या गिवन, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस ऑफ द रिवर्स नंबर. तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 10y plus x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर 10x plus y. सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन आ गई. इसमें से -11 मैंने कॉमन ले लिया, उधर जाके 0 से 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा अगेन. तो क्या रह जाएगा, x minus 8y is equal to 0. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है. दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, you will be getting your answer. After this, moving on to part 4. Part 5 जो है बच्चे, वो आपका जैसे वो फेयर वाला था ना, ऑटो रिक्शा वाला 9th में आपने किया था, इट इज सिमिलर टू दैट. तो फिक्स्ड चार्जेस आप x रुपीज मान लेना और एडिशनल चार्जेस पर डे ₹y मान लेना, तो वहां से आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी. 5th पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. अब मैं 4th आपको जो है उसकी इक्वेशंस बनवा रही हूँ. 4th ध्यान से. मैम हाँ जी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट ही होमवर्क है. होमवर्क पार्ट्स आई विल टेल यू. होमवर्क पार्ट्स में थर्ड आल्सो यू विल डू. सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, और कल मैंने फर्स्ट के दोनों पार्ट्स आपको बता दिए थे. होमवर्क पार्ट्स सेकंड एंड थर्ड थे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो ये वाला पार्ट आपने होमवर्क में करना है, और एक आपने 5th पार्ट होमवर्क में करना है. 4th वी आर डूइंग राइट नाउ. बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको कह रही हूँ कि दीज एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व खुद करोगे, वो आपने प्रैक्टिस नोटबुक में ही कंप्लीट करने हैं, बट यू आर डेफिनेटली टू कंप्लीट देम. मैं किसी भी बच्चे को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक की पिक्स भी सेंड करने को भेज सकती हूँ जो आपके होमवर्क पार्ट्स हैं. सो बोथ ऑफ नाउ
सेकेंड का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो एक बैंक में जाती है और उनको कहती है कि मुझे 2000 रुपीज जो है वो विथड्रॉ करने हैं, निकलवाने हैं अपने अकाउंट में से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कैशियर जो होता है, जो मनी कैश के साथ डील करता है, यानी कि वही आपके मनी जो है लेता है डिपॉजिट करने के लिए, या आपको अगर विथड्रॉ करवानी है मनी तो आपको देते हैं वापस। तो वो कैशियर को कहती है कि मुझे 2000 में सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो जब वो उसको इनका कॉम्बिनेशन देता है ₹50 और 100 का, तो उसको 25 रुपीज नोट्स जो है टोटल वो वापस कर रहा है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो मुझे क्वेश्चन में मोटी मोटी चीज क्या समझ आई कि 2000 रुपीज उसने बाहर निकलवाए, विथड्रॉ करवाए, और टोटल जो उसको 2000 अमाउंट में नंबर ऑफ नोट्स मिले वो 25 मिले। यानी कि सम ऑफ बोथ काइंड ऑफ नोट्स उसको 25 मिला, और सम ऑफ जो मनी है टोटल, अगर वैल्यूज ऐड करूं मैं 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स की, तो दैट वैल्यू इज 2000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो जो चीज निकालनी है इसको एज्यूम कर लेंगे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 हम एज्यूम कर लेंगे x है। लेट द नंबर ऑफ notes of ₹50 is x। नंबर है तो आगे कोई यूनिट नहीं, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 is y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1 क्या कह रहा है, he gave her 25 notes in all। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹y, टोटल उसको कितने नोट्स मिले, 25। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड तरफ क्या कह रहे हैं वो, कि जो उसने वैल्यू टोटल निकाली वो 2000 रुपीज निकाली, टोटल उसने 2000 रुपीज जो है वो विथड्रॉ करवाए। अब देखो 50 रुपीज का अगर मेरे पास एक नोट है तो उसकी वैल्यू 50 रुपीज बनेगी। 50 रुपीज के मेरे पास अगर मान लो 2 नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 50 इंटू 2 यानी कि 100। 50 रुपीज के अगर मेरे पास 4 नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू 50 इंटू 4 200। अब मेरे पास नोट्स कितने हैं, x, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 50x। सेम वे में 100 रुपीज के अगर मेरे पास 1 नोट है तो उसकी वैल्यू बनेगी 100। 100 रुपीज के मेरे पास 5 नोट्स हैं तो वैल्यू बनेगी 500। 100 रुपीज के मेरे पास कितने नोट्स हैं, y, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 100y। तो अब ये 50x जो है वो वैल्यू बनी 50 रुपीज के जितने उसके नोट्स मिले। 100y जो वैल्यू है ये किसकी बनी, जितने उसको 100 रुपीज के नोट्स मिले, और इन वैल्यूज का सम टोटल जितनी उसने मनी विथड्रॉ करवाई थी, यानी कि 2000। तो कंडीशन 2 अगर मैं देख के चलूं तो कंडीशन 2 मेरी क्या बनेगी, कि उसने 50 रुपीज के x नोट्स निकलवाए, 100 रुपीज के y नोट्स निकलवाए, टोटल अमाउंट उसको कितना मिल रहा है, 2000। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। दोबारा देखो इस पार्ट को। इस पार्ट में वो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी जो विथड्रॉन है दैट इज 2000। ठीक है, तो 2000 में 50 रुपीज के जितने नोट्स हैं उनको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स को। मान लो मेरे पास अगर 2 नोट्स होते हैं 50 रुपीज के तो टोटल वैल्यू उसकी 100 रुपीज बनती है। इफ आई एम हैविंग 4 नोट्स ऑफ ₹50 तो टोटल वैल्यू उसकी 200 बनती है। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम हैविंग द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एज x, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 50x। सेम वे में 100 रुपी का अगर मेरे पास 1 नोट है तो उसकी वैल्यू 100। 100 रुपीज के अगर 5 नोट्स हैं मतलब मेरे पास टोटल 500 रुपीज हैं। 100 रुपीज के अगर मेरे पास y नोट्स हैं तो इट मींस मेरे पास जो अमाउंट ऑफ मनी है दैट इज 100y। तो 50x वैल्यू है जितने उसके पास 50 के नोट्स हैं, 100y वैल्यू है जितने उसके पास 100 के नोट्स हैं, 50x प्लस 100y, और इन दोनों का सम टोटल कितने रुपीज उसने निकलवाए, 2000। तो मेरी ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूंगी एंड आई विल गेट माय आंसर। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड करना है यूज, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ x या y को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है, तो व्हाट आई विल डू, इक्वेशन 1 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
विथ 50 या बाय 50। रफ में आप करोगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। तो विद 50 एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस 50 हो जाए। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 है तो ये इक्वेशन 2 मैंने पहले लिख ली, और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट इसलिए करना था क्योंकि ये दोनों मेरे पॉजिटिव बन रहे थे। तो जब भी साइन सेम है, एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे। अब एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हर एक को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 50y इज इक्वल टू 750। तो y इज इक्वल टू 750 अपॉन 50, यानी कि, हाँ जी बच्चे, Ma'am, there is some other Mamta Sharma in the class. yeah, that's mine only. I'm doing the recording from there. That's mine Okay, only. ma'am, I'm sorry. Thanks for the concern बच्चे। So y is equal to 15 आ गया हमारे पास। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो पुट y is equal to 15। मैंने ये एलिमिनेशन इसलिए करवा दिया क्योंकि अभी पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें x और y के कोफिशिएंट्स आपके सेम आ रहे थे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस द मेथड वंस अगेन, ताकि आपका रिकॉल हो जाए। हमने कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। अगर आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बना रहे हो तो मल्टीप्लाई हमने किया बाय 50। अगर y के कोफिशिएंट बनाने हैं तो 50 की जगह आप 100 से कर दोगे। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है आपने। आप पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी कर लो। मैंने फॉर एन ईज 1 में पुट कर लिया क्योंकि वैल्यूज कैलकुलेशंस यहाँ से इजी हो जाएंगी। सो x इज इक्वल टू 10। अब आंसर x और y की टर्म्स में नहीं छोड़ना क्योंकि ये मैंने खुद की assumptions ली हैं। तो आंसर में आप लिखोगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10 and number of notes of ₹100 is 15। तो देखो सम टोटल इनका बना 25। अगर आप इनकी वैल्यूज चेक करोगे 50 into 10 आपका 500 और 100 into 15 आपका 1500, तो इनका सम टोटल कितना बन गया 2000, जितने उसने रुपीस निकलवाए थे। तो आपका आंसर क्विकली आप वेरीफाई भी कर लोगे शो करनी है, ना हो। हाँ जी, वेरिफिकेशन शो करनी है। नॉट शो बच्चे, वो मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, हम जल्दी में कैलकुलेशंस रॉन्ग कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन से वो रेक्टिफाई हो जाता है अगर आपकी कहीं कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक होती है। अदरवाइज यू नीड नॉट शो। यस बच्चे, हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ बच्चे, बस दिस इज द लास्ट, आई एम एंडिंग द मीटिंग, so you can leave the class. If anyone is having any doubt then you can ask, otherwise you can join your next. Thank you, have a nice day. If someone is having any doubt so you can unmute your, otherwise leave the meeting. Okay, fine, then no one is having the doubt, so I'm ending the meeting. Thank you, have a nice day.